Once again, welcome to you all, my dear students. Now, in this video, we will know the explanation of the chapter 4 from the Diary of Anne Frank. So that let us start to this story. Writing in a diary. Writing in a diary is a real strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13 years old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. मुझे जैसी के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है. एंड फ्रैंक्स एक्सप्लेन her view about this story, and she said that मुझ जैसी के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है. इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग टू एक्सप्लेन द डायरी like me, not only because I have never written anything before, but also because it seemed to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13 years old school girl. न केवल इसलिए कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, अपितु इसलिए भी क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि बाद में ना तो स्वयं ना ही कोई और व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि रखेगा. ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है. मैं लिखना चाहती हूँ तथा मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता अपने हृदय में सभी चीज़ें बाहर निकालने की है. इन दिस पैसेज द writers explain about the inner feeling of Anne Frank, how she was so very interested to write her diary. Paper has more patience than people. Paper has more patience than people. कागज में मनुष्यों से अधिक सहनशीलता है. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. मैं इस कथन के बारे में उन दिनों सोचा जबकि मैं थोड़ी सी उदासी अनुभव कर रही थी तथा अपने हाथों में अपनी चूड़ी को पकड़े घर बैठी हुई थी, उदास शक्तिहीन तथा यह सोची हुई कि क्या मुझे घर में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए. स्टे इन आर गो आउट. फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. यस, अंत में मैं जहाँ थी वहीं पर सोचते हुए बैठी रही. एंड फ्रैंक सेड दैट in the last moment she stayed where she was brooding. Yes, paper does not have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should never find a real friend, it probably won't make a bit of difference. अंत में मैं जहाँ थी वहीं पर सोचती हुई बैठी रही. कागज में तो अधिक सहनशीलता है ही, तथा क्योंकि मेरी योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी इस सख्त जिल्द वाली कापी, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, पढ़ें जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिलता. इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं होगा. तो अनलेस आई शुड नेवर फाइंड अ रियल फ्रेंड्स, इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. वो कह रही कि जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिलता,
इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. जब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ, नाउ अब मैं उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा की थी। आई डोंट हैव अ फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र नहीं है। एंड फ्रेंड्स नाउ एक्सप्लेन द एग्जैक्ट मीनिंग अबाउट हर पास्ट लाइफ in her diary, and she said that she had not a friends. Let me put it more. Let me put it more clear since no one let me put it more clearly since no one will be will believe that a 13 years old girl is completely alone in the world, and I am not। तो कह रही है कि मुझे एक विचार सूझा। लेट मी पुट इट मोर क्लियर, सम नो वन विल बिलीव दैट ए 13 years old गर्ल इज completely alone in the world। मैं और स्पष्ट से कह दूं, लेट मी पुट इट मोर क्लियर सिंस नो वन विल बिलीव। अब मैं और स्पष्ट रूप से कह दूं क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मोर ऑब्वियसली, सिंस नो वन विल बिलीव that a 13 years old girl is completely alone in the world. And I am not. I have loving parents and a 16 years old sister, and there are about 30 people I can call friends. तथा तथा मैं हूँ भी नहीं। मेरे प्रिय माता पिता हैं, 16 वर्षीय मेरी बहन है तथा लगभग 30 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। मेरा परिवार है, प्रिय चाचियाँ हैं तथा एक अच्छा घर है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल पीपल्स। आई हैव ए फैमिली, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम्स। नो वन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड्स। वो कहती है कि मेरा परिवार है, प्रिय चाचियाँ तथा एक अच्छा घर है। नहीं, ऊपर से तो लगता है कि मेरे पास सभी कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र की। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 years old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts and a good home. No on the surface I seem to have everything except my one true friends. Except my one true friends. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't believe myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त किसी और बात के बारे में नहीं सोच सकती। हम और नज़दीक आते प्रतीत नहीं होते तथा यहाँ की समस्या है, हो सकता है कि यह मेरा दोष है कि हम एक दूसरे को अपने भेद बता नहीं सकते, फिर भी ऐसी स्थिति है तथा दुर्भाग्यवश यह बदल नहीं सकती। यही कारण है कि मैंने डायरी आरंभ की। टू इनहेंस द
image to enhance the image of long awaited friends. In my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friends, and I am going to call this friend Kitty. वो कहती है, सी सेड दैट, अपनी कल्पना में इस चिर प्रशिक्षित मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए मैं इस प्रकार के तथ्यों को लिखना नहीं चाहती जैसा कि लोग करते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बने और मैं इस मित्र को किट्टी पुकारूंगी. इट मीन्स and friends concerned in her mind about her friends, and gave her friend the name as a kitty. वह अपने इस डायरी में दोस्त तो बनाना नहीं चाहती, लेकिन एक काल्पनिक दोस्त जिसका नाम वो किटी रखती है, जिसका एक्सप्लेनेशन भी वो इस स्टोरी में करती है. सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन in this story. So the remaining story will be explained in next video. So that thank you and have a nice day.